Hello children, good afternoon. Welcome to English Kingdom. This is your teacher Deepak Juneja here, and today's topic for discussion is this poem. The name of the poem is A Photograph, and this is the first poem of your book Hornbill, and this is composed by Shirley Toulson. This is the name of the poet, and the correct pronunciation is, I repeat, Shirley Toulson. So before we begin this poem, let's go to the introduction to the poet. I'm going to show you certain images. These all images are of Shirley Toulson, and right from her young age, you can see this picture, young age, adult age and old age also. A brief introduction is also given here in one slide. Shirley Toulson was born on 20th May 1924 in England. Means she was a poet belonging to UK. This is the first thing. And she was a writer and editor as well, and she died at the age of 94. So this is the brief introduction to the poet. I think it's enough. So let's go back to the poem again. So this is the poem. Here the poet Shirley Toulson actually in this poem is talking about her mother. So while she talks about her mother, she becomes nostalgic. This may be a new word for you, nostalgic. The spelling of this word is Nostal and G and I and C. Nostalgic. Nostalgic means when you become emotional while you recall the past memories, past images and past moments spent with some person. यानी किसी के साथ में अगर बिताए हुए कुछ जो पुराने टाइम जो होता है, पुराना समय, उसको याद करते हुए जब आप भावुक हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है टू बी नॉस्टैल्जिक. सो हियर इन दिस पोएम आल्सो शिर्ली टोल्सन इज बिकमिंग नॉस्टैल्जिक व्हाइल शी रिकॉल्स ऑल द मोमेंट्स स्पेंट विद हर मदर. तो जितने भी मोमेंट्स उन्होंने अपनी मदर के साथ में बिताए थे उनको रिकॉल करते हुए वो इमोशनल हो जाती है. इसी को कहते हैं नॉस्टैल्जिक. All this poem can be divided into 3 parts. ये पूरी poem पहले से ही 3 parts में divided है. There are 3 stanzas actually in this poem, and these 3 stanzas represent different space and time. This is the first stanza which talks about the the poet's mother's childhood. तो ये जो पहला stanza है ये poet की माँ की जो childhood है उसके बारे में बात करता है. And this is the second stanza which talks about the mother's adult age. ये यहाँ पर पोएट की जो मदर हैं उनकी एडल्ट एज के बारे में बात करता है. एंड दिस इज द थर्ड स्टेंजा which talks about when after the mother was no more. ये उस समय के बारे में बात कर रहा है जब मदर इस दुनिया में नहीं रही. तो लेट्स गो टू द पोएम and read word by word, line by line. The cardboard. She starts the poem like that. The cardboard. What is cardboard? The cardboard is a particular substance which holds a photograph. I'm going to show you certain images regarding this one also. You can see this is the cardboard, and here this one is the picture. So the cardboard, this is you can see here the cardboard means the photograph shows me how it was. Means the cardboard shows something. What does it show? Something. The 2 girl cousins. Means 2 cousins sister it is showing. What are they doing? They are doing paddling. They are doing paddling. What is paddling? Paddling is a sea exercise, water exercise actually. I'm going to show you picture. This is called paddling. So in the picture, in the cardboard, this picture also can be seen there. So each one holding one of my mother's hands. Each one means each cousin sister is holding the mother's hand. It means to say mother is at the center. The first cousin girl here and the second cousin girl here, both are holding the mother's hand. It means to say the mother is standing at the midst. She, the big girl. Who is the big girl? The mother is the big girl. Big girl means the eldest one. Some 12 years or so. This was her age. 12 साल की उसकी एज होगी मदर की. तो ये जो पहला स्टेंजा है ये पोएट की मदर की चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है, एक पिक्चर के बारे में जो चाइल्डहुड में ली गई थी. All 3 stood still. Now all 3, which 3 are being talked of here?
mother along with two cousin girls stood still to smile through their hair. सबसे पहले इस लाइन की पोइटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं. इस लाइन में जो पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है दैट इज एलिट्रेशन. लुक एट दिस particular sound, sir and sir. This is creating alliteration. And what is the spelling of alliteration? ALLITERATION. Alliteration is a poetic device which is all about the repetition of consonant sounds. जब एक के बाद एक वर्ड में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ध्यान रखिए साउंड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, साउंड स स स. तो ये जो हो रहा है इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एलिट्रेशन इन अ पोएम? इट क्रिएट्स रिदम, इट क्रिएट्स म्यूजिक. दैट्स व्हाई द पोएट यूजेस एलिट्रेशन. सो ऑल थ्री मीन्स दीज थ्री गर्ल्स, द मदर along with two cousins, they all are standing still. Standing still for what? They are standing still for photograph. Still means बिल्कुल स्थिर. क्यों स्टिल खड़ी हैं वो? फोटोग्राफ के लिए. They are smiling, having a lot of fun, smiling through their hair. Now what is the meaning of this? They are smiling through their hair means while they are having the picture, because of the sea breeze, their hair are flying. उनके their hair are scattered. उनके जो बाल बिखर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उड़ने के कारण उनकी जो स्माइल है दैट इज हिडन. वो उनकी स्माइल उन हेयर के पीछे हिडन हो रही है. दैट इज लाइक अ स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. चेहरे पर बाल आ रहे हैं, चेहरे पर बाल उड़ रहे हैं, उसके कारण उनकी जो स्माइल है वो पीछे हाइड हो रही है. सो ऑल दीज थ्री गर्ल्स आर स्टैंडिंग देयर. दे आर स्टैंडिंग वेरी स्टिल बिकॉज दे आर रेडी फॉर ए पिक्चर विच इज बीइंग टेकन बाय द अंकल हु इज होल्डिंग ए कैमरा इन हिज हैंड. तो इसका मतलब यह है कि उस जो सी पिकनिक हुआ था, सी साइड पिकनिक, देयर वर एक्चुअली 4 people. 4 people कैसे हुए? द पोएट्स मदर एंड द सेकेंड वन 2 cousin girls यानी 2 cousin sisters and the last one this one uncle who was taking the photograph. A sweet face. Whose sweet face? My mother's sweet face. The poet is talking, my mother's face was very sweet. That was before I was born. Means this picture was before I was born. यानी ये पिक्चर मेरे पैदा होने से पहले का था. Now these 2 lines of this particular stanza are very important और अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर. एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? पोएम में से आपकी कोई 2 लाइनें या 4 लाइनें कॉट करके दे दी जाएंगी. आपको पोएट का नाम बताने के लिए कहा जाएगा, पोएम का नाम बताने के लिए कहा जाएगा और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो these 2 lines are very important. The sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. So here the poet is showing her anguish and envy. Anguish क्या कहते हैं? Anguish कहते हैं रोष. और anguish कब बनता है? When it is mixed with anger, sorrow and jealousy. Anguish कब बनता है? जब आपको गुस्सा भी आ रहा हो, जब आपको दुख भी हो रहा हो और जब आपको ईर्ष्या भी हो रही हो. जैसे पापा ने आपके बड़े भाई को तो बहुत अच्छे कपड़े दिला दिए, आपको नहीं दिलाए, तो फिर क्या होता है? मन में एंग्विश पनपता है. तो हियर द पोएट इज आल्सो हैविंग द एंग्विश एंड जेलसी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द सी. व्हाई इज शी हैविंग जेलसी टुवर्ड्स द सी? दैट एवरीथिंग हैज चेंज्ड. व्हाटएवर इज बीइंग शोन इन द पिक्चर, पिक्चर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे मदर हों, चाहे कजिन सिस्टर्स हों, चाहे अंकल हों, सब चेंज हो गए. एवरीथिंग हैज चेंज्ड. बट दिस सी अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. बट देर आर लेस चेंजेस इन दिस सी. लेकिन इस सी में तो बहुत ही कम चेंज हुए हैं. दिस इज द सी वाटर इज वॉशिंग देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ये सी वाटर जो है उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ट्रांजिएंट मीन्स विच इज़ नॉट परमानेंट. फीट आप समझते ही हैं. टेरिबली इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत कम एज के, ये ह्यूमन बींग्स की कम एज को शो कर रहा है. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट कि इस समुद्र की तो इतनी लंबी उम्र और ये इंसानों की इतनी कम उम्र. ट्रांजिएंट मीन्स परमानेंट नहीं है,
फीट पैर समझती हैं, टेरिबली, अब ये यहाँ पर एलिट्रेशन क्रिएट हुआ, टी ट साउंड, तो ये एलिट्रेशन क्रिएट हो गया। ये वाला जो टी है ये एलिट्रेशन क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट क्रिएटिंग ट साउंड, this altogether making the sound, so alliteration is not here. Only in these two words alliteration is used there. So what is she showing anguish at? She is showing anguish at the permanence of the sea. वो अपना anguish sea की permanence पे दिखा रही है कि ये समुद्र का जो पानी उनके terribly transient feet को आज टच कर रहा था उस समय पिक्चर में, आज ये समुद्र का पानी तो वैसा का वैसा ही है, समुद्र तो वैसा का वैसा ही है, बट दीज फीट मीन्स ह्यूमन बींग्स, फीट इज हियर द सिंबल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रांजिएंट मीन्स आर नॉट परमानेंट। अब जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, इनमें हो सकता है कि वो उस समय व्हेन द पोएम वाज रिटन दे आर नॉट ऑन द अर्थ, हो सकता है कि वो धरती पर है ही नहीं, इसीलिए द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हर एंग्विश, इसीलिए पोएट अपना एंग्विश एक्सप्रेस कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि दीज टू लाइन्स मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड बाय यू। चलिए आगे सेकंड स्टैंजा में चलते हैं। सम 20-30 years later, नाउ दिस स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट द एडल्ट एज ऑफ द मदर। 20-30 years later, this picture was taken when she was of 12 years. Now 20-30 years later, that means to say she must be of either 32 years or something like that, 42 years. Adult age हो गया। Some 20-30 years later, when they were sitting together, who were sitting together? The mother and the poet. In the first stanza, when this photograph was taken, the poet was not there. But in the second stanza, when they are talking with each other, mother is there. Oh, sorry, the poet is there. After 20 or 30 years later, she would laugh at the snapshot. एक दिन दोनों एक साथ बैठी हुई थी and the mother was laughing at the picture. Snapshot, ये फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है। See Betty and Dolly. So for the first time we have come to know about the names of those cousin sisters. पहली का नाम बेटी और दूसरी का नाम डॉली। And look how they dressed us for the beach. She was laughing about the dresses which they wore while going for seaside picnic. बीच पर जब वो गए थे उसमें उन्होंने किस तरह की ड्रेसें पहनी थी, उस पिक्चर को देख के उन पर हंस रही थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? द पोएट्स मदर इज मिसिंग द सी हॉलीडे। जो पोएट की मदर है वो तो सी हॉलीडे को मिस कर रही है। माइन इज हर लाफ्टर, जबकि जो पोएट जो है अपनी मदर की लाफ्टर को मिस कर रही है। यानी वो जो पोएट की मदर हैं उन्होंने सी हॉलीडे बहुत समय से एंजॉय नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि उस पिक्चर वाला जो लोग हैं उनको मिस कर रही है, लेकिन जो पोएट यहाँ पर हैं वो मदर की लाफ्टर को मिस कर रही है। अब ये पोएट लाफ्टर मिस करने का कारण क्या है? हो सकता है कि वो बहुत दुखी हों इन बेटी और डॉली के जाने से, या कुछ और तरह की बातें हो गई हों, इसके कारण बहुत दुखी हों, तो वो उनको मिस कर रही हैं। बोथ राय का मतलब शो ऑफ, एज इफ यू आर गुड। दोनों ही हम कोशिश कर रही हैं, क्या कर रही हैं? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस यानी अपने लॉस को छिपाने की कोशिश कर रही हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़े ही कोशिश के साथ में अपने दुख को छिपाने की दोनों ही कोशिश कर रही हैं। राय मीन्स टू शो ऑफ अबाउट योर सेल्फ एज इफ यू आर वेरी हैप्पी और अम्यूज्ड, दिखाने की ऐसे कोशिश करना जैसे आप बहुत खुश हैं। दोनों कोशिश कर रही हैं, दोनों दिखाने की कोशिश कर रही हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अपने लॉस को, अपने दुख को कम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेबर्ड मीन्स बाय हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स बड़ी अच्छी मेहनत करके, या बड़ा जैसे कहते हैं कठिन तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ शी हैज़ बीन डन। सो दिस स्टैंजा इज ऑल अबाउट व्हेन द मदर डाइड, आफ्टर द मदर डाइड। माँ के मर जाने के बाद की स्टेंजा ये है। शी हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब इसका मतलब ये है कि जो उस गर्ल की एज ऊपर बताई गई 12 ईयर्स, उतने ही साल उसकी मदर को एक्सपायर हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू?
This circumstance refers to the death. There is nothing to say at all. यानी इस circumstance में जो mother की death से create हुई है, there is nothing to say at all. I can't say anything. It's silence, silences. अब यहाँ पर देखिए दो poetic device हुए. एक तो ये SS sound repeat हुआ तो alliteration create हुआ, और एक ये दो words repeat हो रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं repetition. तो यहाँ alliteration भी है और रिपीटिशन भी है, रेपिटिशन बोल सकते हैं आप इसको. ये दोनों पोइटिक डिवाइसेस यूज किए गए. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पिक्चर व्हेन द मदर, पोएट्स मदर अलोंग विथ cousin sisters were enjoying a very good picnic at the seaside or sea beach. And the second stanza talks about the mother's adult age when she was laughing at that picture, she was laughing at that photograph, but actually she was not laughing, she was trying to hide her loss, she was trying to hide her sorrow. And the third stanza talks about the situation which emerged after the poet's mother died. So this is all from this particular poem. I hope I could help you. Thank you very much.